कर्नाटक में 5 दिनों से जारी सियासी बहरान का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां पर कांग्रेस और जेडीएस के बागी एमएलए ने स्पीकर के खिलाफ अर्जी दाखिल कर मामले की समाअत जल्द ही करने की अपील की है। बागियों की जानिब से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा है कि स्पीकर अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं। तो वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस ने पार्टी के बागी एमएलए में से 9 को ना अहल करने की मांग की है। साबिक सीएम सिद्धरमैया ने इस मामले को एक खत स्पीकर को भी लिख कर दिया है इस बाबत। हालांकि पार्टी ने सीनियर एमएलए रामलिंगा रेड्डी के लिए वो अब सॉफ्ट हो गई है। उम्मीद है कि जल्द ही वो अपना इस्तीफा वापस ले सकते हैं। वाज़ेह रहे कि जनता दल सेक्युलर के 3 एमएलए समेत 12 बागियों में से 12 ने 6 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था। और वहीं दूसरी जानिब कुमारस्वामी हुकूमत को गिराने और बचाने की कवायद चल रही है। रियासती वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडरान डीके शिव कुमार बागियों से मिलने के लिए मुंबई पहुंचे, जहां पर पुलिस ने उन्हें होटल में दाखिल नहीं होने दिया। शिव कुमार का कहना है कि यह सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। उनके लिए होटल में कमरा बुक है, लेकिन उन्हें अपने ही मुल्क के अंदर कहीं आने जाने की आजादी से रोका जा रहा है। होटल पहुंचने के बाद मुखालिफ कारकुनान ने शिव कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी की। हालात को देखते हुए पुलिस ने इलाके में दफा 144 नाफिज करते हुए शिव कुमार को हिरासत में ले लिया है। पूरे मामले पर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर एमएलए की खरीदो फरोख्त का इल्जाम लगा रही है। I have a lot of respect on this Maharashtra government. We love this government. It is an hospitality city. It is a worldwide accepted city. But this is the first time we are receiving this. We have not brought any illegal force. I don't have any weapons. Only I have a heart here. I only have heart here. I have come here to extend my heart to my friends. Since the BJP behind all of this? Maybe. Oh, yes, of course. BJP, yesterday night they have come and they have taken letters from them and given to them. That is what they are telling. Without BJP, how it can be? See, when BJP is telling that we are not involved, why is this? Why is it they are using these officers, poor officers? I don't blame these officers. I don't tell wrong. They should not give security. They should give security. After all, they are our legislators. It is better to give security, but no doubt. But not allowing us to enter the hotel. What is this? This is India, I say. This is a democratic country. Problem is there. Friendly. As meet my friends MLS. Sir, have you got any message from SD Devegowda sir or SD Kumaraswamy sir? No HD Devegowda sir or any Kumaraswamy is not sent to representatives. My friendly, I will come. Is a BJP government. Yesterday, R. Ashok, BJP leader, and Bhupaya, ex former president of Vidhan Sauda, Karnataka Assembly, has come and meet. All arranged. Not a private. It's a public hotel. Online booking a room. Although booking a room, online booking room. I am a customer. Shiv Kumar has gone, I think, yesterday night, and today he wanted to meet. But I told you earlier itself that BJP government in Maharashtra is acting as an agent of All India Bharatiya Janata Party. So they are giving protection, they are giving all types of help, including aircrafts. All these things they are doing it, what I was told the people of Maharashtra. Therefore, they are not following any democratic methods. They want to crush the opposition. So they are doing all these things. So this is very bad for the democracy. तो कर्नाटक में शह और मात का सियासी खेल जारी है, जहां पर डीके शिव कुमार की बागियों से मुलाकात से रोकने के खिलाफ जमकर मुजाहरा किया गया है। जेडीएस कांग्रेस कारकुनान ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुजाहरे में सीएम कुमारस्वामी के अलावा साबिक वजीर आजम HD देवगौड़ा, कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद समेत दोनों ही जमात के एमएलए भी शामिल हुए। तो वहीं दूसरी जानिब स्पीकर के जल्द ही फैसला नहीं लेने के खिलाफ बीजेपी धरने पर बैठ गई है, जिसके बाद साबिक सीएम येदियुरप्पा की क़यादत में बीजेपी अरकान ने गवर्नर से मुदाखलत की मांग की है।
उनका कहना है कि कुमारस्वामी हुकूमत अक्सरियत गंवा चुकी है, लिहाजा उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। को वापस लाने के लिए हम लोग को लगातार कोशिश कर रहे हैं, मगर उनको कांटेक्ट नहीं हो रहा। बीजेपी वाले उनको गन पॉइंट के ऊपर रखे हुए, ना किसी को बात करने दे रहे, उनका फोन सब लेके रखे हुए हैं। प्लस उनको पूरा सिक्योरिटी, मिलिट्री सिक्योरिटी कैसा होता है ना, मिलिट्री सिक्योरिटी कैसा है, एक किडनैप को करके लेके जाके कैसा रखते हैं, उस हालत से हमारे एमएलए को रखा गया है उधर। अगर उनको छोड़ेंगे ना, ऐसा किसी को नहीं रख सकते, आप भी जानते हैं। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आप जाके देखो उधर। में आपको प्रेस मीट किया, अभी प्रेस मीट हमारे 3-4 आदमी एमएलए ने बात किया उधर, आप देखे होंगे। और उनके पीछे कितने जन थे देखे आप, वॉच किए। एक एमएलए के पीछे 4-4, 5-5 आदमी लगाया गया है। उनको फ्री छोड़ो, उसको आजादी दो। आपके एमएलए खुद नहीं चाह रहे हैं कि वापस आए। देख तेरा वॉच करो। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, उन लोग को अगर आजादी देंगे ना तो 100वीं सदी वो लोग आने को तैयार है, मगर आजादी नहीं मिल रही है उनको। एक टाइम किडनैपर कैसा करके किडनैप करके कैसे लेके जाओ, उस हिसाब से उनको बांध के रख दिए। We have decided to sit dharna in front of Vidhan Saudha Gandhi Chowk. Afterwards we are going to meet governor. Afterwards we are going to meet speaker also. When the resignation letter is according to speaker about 5-6% is correct, then why is delaying? At least you must accept that immediately, na? Number 2, those who are not in correct forum, they will come and give the correct forum. So delaying this, almost all legal experts are given their opinion. Now at least I have got full confidence about Ramesh Kumar speaker. Now take all the experts' opinion and take decision immediately. और कर्नाटक की सियासी अपडेट देने के लिए इस वक्त बेंगलोर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है जी मीडिया नुमाइंदे जयपाल शर्मा। जयपाल, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि इस वक्त कर्नाटक की सियासत के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि 5 दिन से हम देख रहे हैं सियासी बहरान चल रहा है और जो एमएलए हैं वो मुंबई पहुंचे हुए हैं बागी, उनसे मिलने के लिए डीके शिव कुमार जाते हैं, वहां पर उनको रोक दिया जाता है, मिलने नहीं दिया जाता है। आखिर चल क्या रहा है ये सब? देखिए, इस बीच में जो है कर्नाटक में, अगर मैं ये कहूँ कि कर्नाटका में जो सरकार है उसकी स्थिति और खराब हो गई है तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि आज 2 और विधायकों ने, एमपीडी नागराज जो कि होसकोटे से विधायक है और इसके अलावा डॉक्टर सुधाकर जो कि चिकबल्लापुर से विधायक है, उन्होंने 2 विधायकों ने आज अपना इस्तीफा स्पीकर को सौंप दिया है। हालांकि उसके बाद बहुत ही ज्यादा विरोध एक तरह से विधानसभा के अंदर भी शुरू हो गया। कांग्रेस के नेता वहां मौजूद थे, डॉक्टर सुधाकर को लेकर के वो जॉर्ज के कमरे में चले गए ताकि उनका ब्रेन वॉश किया जाए। अभी वहां पर स्थिति बहुत गंभीर है, क्योंकि एक तरफ मीडिया है, मीडिया को अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह से देखा जाए, डॉक्टर डीके शिव कुमार भी आज मुंबई पहुंचे थे। मुंबई पहुंच के उन्होंने कोशिश की थी कि वो बाकी विधायकों के साथ बातचीत कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आखिरकार उनको गिरफ्तार, उनको डिटेन करना पड़ा और उसके बाद अब डीके शिव कुमार बेंगलुरु वापस लौट रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो स्थिति सरकार की ठीक नहीं है, क्योंकि येदियुरप्पा लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि सरकार जो है उसके पास बहुमत नहीं है। ऐसे में अब कुमारस्वामी को इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। कर्नाटक में जारी सियासी बहरान के बीच 2 और एमएलए ने अपना इस्तीफा दे दिया है। मौजूदा बहरान के बाद सभी की निगाहें रियासती स्पीकर रमेश कुमार के फैसले पर मरकूज है। हालांकि इससे पहले कल उन्होंने गवर्नर को लिखे खत में 13 में से 8 अरकान असेंबली के इस्तीफे को गैर आईनी बताया था, जबकि 5 बाकी के अरकान को उन्होंने अपने सामने पेश होने की बात कही थी। गवर्नर को खत लिखकर उन्होंने कहा है कि इस्तीफा दे चुके किसी भी एमएलए ने उनसे मुलाकात नहीं की है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए रमेश कुमार ने यकीन दिलाया है कि जो भी होगा आईन के मुताबिक ही किया जाएगा। और वहीं इस्तीफे के फैसले के सवाल पर स्पीकर रमेश कुमार ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। I have not rejected. Please don't put your words into my mouth. Those resignations are not in the prescribed format. I have advised them if they intend to submit resignations, they should do it in the proper way. One, they have given it and gone. They are in the format. They submitted the resignation. Yeah.
Sudhakar and MP. How many resignations have you got so far? I don't know, you make the totaling. They urged upon me that the decision should be earlier. Have they claimed the majority? Have they claimed that they are majority? That they have to do on the floor of the House, not before. So the 2 resignations that you've got, have you accepted that resignation? I have not accepted any resignations. I can't do it overnight like that. I have given them time on 17th. I will go through the procedure and take a Have they decision later. submitted, sir, Sudhakar? Yes. अपने क़यादत के रास्ते पर चलते हुए कर्नाटक के कई शहरों में मुजाहरे शुरू हो गए हैं। शिवमोगा में हुए मुजाहरे के दौरान कांग्रेस और बीजेपी कारकुनान ने एक दूसरे पर खरीद फरोख्त का इल्जाम लगाया। बीजेपी का कहना है कि मौजूदा बहरान से उसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि बागी एमएलए अपने इलाके को नजरअंदाज किए जाने से नाराज है, जबकि कांग्रेस ने सीधे तौर पर मौजूदा हालात के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया।